الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، علماء ذوی الاحترام کا حکم ہوا آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے چند منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. سرکار جمع شاہ کا فیضان ہے اور بہادر پور کے لوگوں کی محنت، گرد و نواح کے لوگوں کا تعاون ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت تمامین کی کاوش محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اتنا پاکیزہ نام رکھا کہ نام ہی سے سنیت جھلک رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یقیناً ہمارے سینے میں پیغمبر اسلام کی ہر نسبت کا احترام ہے. ہم نبی ذی وقار کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے اصحاب سے بھی محبت سبحان کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور جس کے سینے میں ادب و محبت نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. سنیت نام ہی ہے ادب و محبت کا کہ پیغمبر اسلام کی ہر نسبت کا احترام کرے، نبی ذی وقار سے منسوب ہر شے کا احترام کرے. کتنا احترام کرتا حضرت امام مالک کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ لوگوں، مدینہ کی زمین بنجر ہے. اتنا سننا تھا آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمائی سے 40 درے لگاؤ. 40 درے لگائے گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آخر درے کیوں لگائے گئے؟ کہا اسے یہ نہیں پتا کہ اس زمین میں آمینہ کا لال آرام فرما ہے اور یہ اس کی بنجر کہہ کے توہین کر رہا ہے. یہ میری محبت کو گوارا نہیں. جس زمین میں مصطفیٰ آرام کریں، جب سنی ان کا احترام اس قدر کرتا ہے تو وہ صحابہ، وہ اہل بیت جو نبی کے نام پر مٹتے رہے، ہم ان کا کتنا احترام کریں. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد خلفائے راشدین، مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین. عزیزان وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اہل سنت والجماعت کا سینہ خدا نے وسیع بنایا ہے. ہم دل کھول کر کے ذکر صحابہ بھی کیا کرتے ہیں، ہم سینہ کھول کر کے ذکر اہل بیت بھی کیا کرتے ہیں. ہم جہاں یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، وہی میرے پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا عائشہ تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے، آخرت میں بھی میری جوزہ ہے. ہم سنی نبی کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں. اور اللہ اکبر یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام کے دیواروں یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جو اوصاف بیان کیے، ہم اہل سنت والجماعت وہ اوصاف دل کھول کر کے بیان کرتے ہیں. آؤ میں بتاؤں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غدیر خم کے موقع پر علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. ہم اگر نبی ذی وقار کے اس ہاتھ کے پکڑنے کو یاد ہے تو مجھے مدینہ منورہ کی وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ پیغمبر
पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। एक तरफ हजरत अबू बकर है, दूसरी तरफ हजरत उमर है। मुस्तफा जाने रहमत ने दोनों के हाथ को थाम रखा है और पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा ने आते हुए देखा, मुस्कुराने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इनकी खुशी में 4 चांद ना लगाऊं? गुलामों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह 4 चांद लगाया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, आज जिस तरह मैं मस्जिद नबवी में आ रहा हूँ, एक तरफ हजरत अबू बकर है, दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक है, इसी तरह कल मैदाने महशर में आऊंगा, एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ मौला उमर होंगे। मुसलमानों जरा गौर तो कर लो, हम जनाबे हजरत अबू बकर की तौसीफ क्यों ना बयान करें, उनकी शान क्यों ना बयान करें। आज जरा देखो तो सही, हमने देखा इस मामले में माह मुहर्रमुल हराम है, एक घोड़े की शबीह तैयार की जाती है, कोई इसकी सुमों को चूम रहा, कोई उसकी दुमों को चूम रहा। मैंने चूमने वालों से सवाल कर लिया, ये बताओ आखिर इसके सुम को क्यों चूमा जा रहा, इसकी दुम को क्यों चूमा जा रहा? तो चूमने वालों ने कहा, नहीं तुम्हें पता नहीं, ये शबीह है उस सवारी की जिस पे इमाम हुसैन बैठे थे, इसलिए मैं उससे चूम रहा हूँ, इसलिए मैं ताजीम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोसा दे रहा हूँ। मुसलमानों, मुझे कह लेने दिया जाए, अगर इमाम हुसैन जिस सवारी पर बैठ जाए वो सवारी काबिल ताजीम है, उस सवारी की शबीह काबिल एहतराम है, तो जिस अबू बकर के कंधे पर हुसैन का नाना हिजरत के मौके पर सवार हुआ था, वो अबू बकर क्यों एहतराम के काबिल नहीं, क्यों ताजीम के काबिल नहीं, क्यों मोहब्बत के काबिल नहीं? पैगंबर इस्लाम को लेकर के जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर दाखिल होते हैं, गार की सफाई फरमाते हैं। उसके बाद नबी अज़ी वकार की बारगाह में आरिज़ा पेश की, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाएं। सरवरे कौनैन अंदर दाखिल होते हैं, मुस्तफा जान रहमत अंदर आराम फरमा होते हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बयान किया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सीने में नबी की मोहब्बत आ जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सीने में नबी का इश्क आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कल्ब में पैगंबर इस्लाम की उल्फत आ जाए, तो नबी ज़ी वकार की मोहब्बत से पहले अपने सीने में अबू बकर की मोहब्बत पैदा कर ले। अबू बकर की मोहब्बत तेरे दिल की सफाई करेगी, तब नबी की मोहब्बत उसमें कयाम करेगी, उसमें ठहरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक गार में दाखिल हुए, गार को साफ किया। बड़ा वक्त बड़ा मुख्तसर है, बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करूं। अजीजान वकार गार को साफ करने के बाद अब नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। पैगंबर इस्लाम अंदर तशरीफ ले गए, आराम फरमा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। अब काफिर पैगंबर इस्लाम के ताक़ुब में गार के दहाने पर पहुंचे। अल हुक्म रब्बी से एक दरख्त गार के मुंह पे उगता है और एक कबूतरी अपने अंडे आकर के उस यकीनन दरख्त पे देती है। मकड़ियों ने जाले तान दिए। अब जब वो काफिर गार के दहाने पर, गार के मुंह पर आते हैं, तो सोचने लग गए, अगर गार के अंदर कोई गया होता तो ये तार टूटता, ये जाले टूटते और ये जो कबूतरी का अंडा है ये जमीन पर गिरता फूट जाता, ये सलामत ना होता। अल्लाह ने उनकी अक्लों पर मोहरें लगा दी, वो तमाम तर लोग वापस चले गए। मुसलमानों जरा देखो तो सही, जब कोई पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है, आकाए करीम से प्यार करता है, तो अल्लाह उसकी मेहनतों काविश को रायगा नहीं जाने देता, खुदा उसे इनाम दिया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर हैं और जानते हो हजरत शवाहिदुन नबुव्वा में हजरत अब्दुर रहमान जामी तहरीर फरमाते हैं कि आज जो मक्का और मदीना शरीफ में जो कबूतर पाए जाते हैं गुंबदे खदरा के इर्द गिर्द, वो तमाम कबूतर उसी कबूतरी की नस्ल से हैं जिस कबूतरी ने गार के मुंह पे अंडे दिए थे। अल्लाह ने नस्लों में बरकतें पैदा फरमा दी, अल्लाह ने नस्लों में बरकतें अता फरमा दी। आज भी उस कबूतरी के नस्ल के तमाम कबूतर गुंबदे खदरा का तवाफ कर रहे, गुंबदे खदरा का चक्कर काट रहे, गुंबदे खदरा के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए मुसलमानों, जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर है, कबूतर गार के बाहर है। जिसने नबी की जैसी खिदमत की, अल्लाह ने उसे वैसा इनाम
पैगाम दे दिया। रब की करीमी कहती वाह, है, वाह, वाह। अबू बकर तूने गार के अंदर मेरे महबूब की खिदमत की है, तुझे मजार के अंदर जगह दी जाएगी। ऐ कबूतरों, तुमने गार के बाहर पैदा किया है, मजार के बाहर तुम्हें जगह दी जाएगी। जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर हैं और अजीजाने वकार कबूतर मजार के बाहर हैं। यकीनन अल्लाह ने करम फरमाया तो मुस्तफा जाने रहमत की हर निस्बत का एहतराम सुनने के लिए लाजिम है। हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक जितने सहाबी हैं, सब सहाबी की ताज़ीम हम पर वाजिब है, हम पर जरूरी है। अगर कोई किसी सहाबी की शान में अदना बेअदबी करता है, गर्चे उसकी निस्बत किसी बुजुर्ग की जानिब क्यों ना हो, वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नियत के लिए लाजिम है कि मुस्तफा जाने रहमत की आल नबी अज़ी वकार के हर सहाबी से मोहब्बत करे, उनकी ताज़ीम अपने सीने में रखे। ये अहले सुन्नत वल जमात की महफिल है, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम नबी अज़ी वकार के हर सहाबी का एहतराम करेंगे, नबी अज़ी वकार की हर आल का एहतराम करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु